Yes, I have got married. I can't believe I'm saying this, but yeah, it's been 1 month since I've got married. Past 1 year has been like all kinds of feelings within me, roller coasters. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. And in today's video, we'll be talking all and everything about my wedding outfits, where I got them from, how much they costed, what was the timeline, mishaps that happened during the wedding, shopping. It's going to be a very wholesome video, so bring your popcorn. Without further ado, let's just quickly get into this video. So a little background actually before we get into the video fully. So I live in London and I got married in Mumbai, Igatpuri. So Igatpuri is like 3-4 hours drive from Mumbai. So it was a destination wedding. So I planned and did everything sitting from London. I actually flew to Mumbai only a month before the wedding, so it was very hodgepodge and chaotic stuff for me because I did not start my shopping until the 1 month. So for me, the heavy outfits were haldi, sangeet and wedding. Mehendi was like a very low-key ceremony because we just did it at my house and we had very few people invited, only family and a few close friends. That's really it. Starting with my mehendi outfit, I got it locally in Navi Mumbai where I live. The most economical purchase I've made. I think it was, I don't exactly remember the amount, but it costed around 3 to 4 thousand rupees. It was a very simple, and I wanted it to be simple because I actually set like 7-8 hours for the mehendi, full hand, back hand, leg. So it needs to be comfortable, plus sleeveless ho to acha because your hand needs to be free, your leg needs to be free. So it was like a gharara, so I have to like tie my bottoms up because it should not interfere with my legs. Mehendi mere dupatte mein bhi lag gayi thi idhar udhar jalwa ke, and I kind of wanted to do like a Punjabi look, so I did like paranda and all. I was quite happy with that. Then moving on to my other outfits, I did all my shopping in Mumbai itself, and my mother-in-law was like very helpful, so she really helped me shortlist my shops. So I had a few shops already shortlisted before I landed in Mumbai, and the second shop itself that I went to was Bombay Wear in Malad, and वहीं से मेरी तीनों outfits है because उनके collection इतने अच्छे हैं and not very expensive. The showroom is huge and the service is also great. मैं आगे बताऊंगी आपको क्या क्या हुआ उनके साथ. So haldi outfit I think was everything that I wanted, multicolor, and we kept the theme of sky blue with the haldi, so it was just going with everything. It was like pink because I actually wanted to do pink for the wedding, but I ended up doing other color for the wedding lehenga, so I thought pink haldi mein karte. The outfit was like dreamy outfit. It was so chic and I just loved it. It had all moti work, it had all mirror work. It was just the kind of thing I was looking for, so I really loved it. Then for the sangeet, now when I was searching my outfit for the sangeet, I wanted to get like a mermaid cut, a fish cut, but I wasn't getting the kind of design I wanted in that. So what the sales guy there at Bombay Wear said that आप नॉर्मल लहंगा देखो एंड देन हम उसको कस्टम मेक कर देंगे आपके लिए फिश कट में. सो आई वाज लाइक ओके फाइन. सो एंड आई लाइक्ड वन ब्लू लहंगा दैट आई एंडेड अप वेयरिंग, एंड आई वाज लाइक ठीक है अभी इसको आप फिश कट बना दो. सो दे वर लाइक ओके फाइन. अब फिर जो चीज़ हुई वॉज द थिंग दैट मेड मी एंशियस ड्यूरिंग द वेडिंग, कि जब मैं एक्चुअली 2 बार ट्रायल्स के लिए गई, एंड जब मैं फर्स्ट ट्रायल के लिए गई तो उन लोग ने मेरे लहंगा मरमेड कट कराया ही नहीं था. इट वाज लाइक अ नॉर्मल लहंगा, एंड आई टोल्ड देम कि यू हैव टेकन 15 days टू डू नथिंग टू माई लहंगा. उन्होंने बोला ठीक है ओके. फिर उन्होंने मास्टर जी को बुलाया, सेल्स वाले ने बोला कि इसको ये करना है. देन ही वाज लाइक ये फैब्रिक में होगा नहीं, ये वो, एंड दे हैड लाइक अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग. इन द एंड ही गॉट कन्विंस्ड कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ करने का. Then for the next trial when I came, they did it, but it was so tight I could barely move my leg. मतलब मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतना टाइट मतलब
बहुत ही ऐसे क्लोज हो गए थे मेरे लेग. द ब्लाउज वॉज टाइट, द वेडिंग लहंगा का भी ब्लाउज वॉज टाइट, एंड इट वॉज लाइक जस्ट अ वीक बिफोर माई वेडिंग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स वर हैपनिंग. आई टोल्ड देम कि मेरी शादी है अभी नेक्स्ट वीक में, कैसे भी लाइक डू इट फॉर मी. एंड आई टोल्ड देम दैट आई एम गोइंग टू वेट हियर ओनली. मुझे ज्वेलरी खरीदनी, मैं वो जा रही हूँ, मैं 2-3 घंटे में आऊँगी. एंड आई वॉन्टेड टू बी लाइक, क्योंकि सिर्फ साइज़ का ही इधर उधर करना था. तो दे वर लाइक ठीक है. वापस जब मैं आई तभी भी वो इट वॉज टाइट बट नॉट एज टाइट एज इट वॉज, बट इट वॉज स्टिल वेरी टाइट. तो फिर एट द एंड आई वॉज लाइक ठीक है. मैं और मेरी मम्मी वी हैड अ डिस्कशन, वी टोल्ड कि अभी ले लेते हैं कपड़ा, बिकॉज खारगर से मलाड जाना आना भी इज़ लाइक 2 hours एंड पूरा दिन चला जाता है. तो लाइक कि ठीक है, इसको लेके हम अपने लोकल टेलर को देंगे. And then we got the lehenga and then we went to the local tailor and we told him कि भाई देखो इसको लूज़ करना है. And then skirt के लिए he was like ये नहीं होगा, ये है वो है, this will take a lot of time, this and that. And I literally was like please भैया प्लीज़ कर दो, मेरी शादी है, मैं क्या करूँगी ये वो करके. I literally told him कि प्लीज़ कर दो. And he was like मम्मी, एंड देन मम्मी टोल्ड कि आप ज़्यादा पैसे ले लेना पर कर दो. एंड देन एट दैट पॉइंट लाइक ओके ठीक है मैं ट्राई करता हूँ. एंड देन उसके साथ भी मेरे 2-3 बार टू एंड फ्रो ही हुए ब्लाउज के लिए ये वो. फिर एक दिन बिफोर माई मेहंदी आई गॉट माई लहंगा, सो द बॉटम, एंड द बॉटम वॉज फाइन, वो अच्छा फिटिंग हो गया था. बट द ब्लाउज वॉज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. नाउ ये टाइट तो ठीक हो गया, ये वाला टाइट ठीक नहीं हो रहा था. आई डोंट नो वाई. इट वॉज टाइट फ्रॉम माई शोल्डर्स एंड इट वॉज नॉट गेटिंग फिक्सड. एंड मैं उसके साथ भी 2-3 बार टू एंड फ्रो किया. फिर जिस दिन मेरी मेहंदी थी लिटरली उसके मॉर्निंग में मैंने जाके उससे ब्लाउज लिया है एंड इट वॉज स्टिल टाइट. बट देन वी जस्ट थॉट कि अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, कल निकलना है, तो अब यही पहनना पड़ेगा. एंड माई हैंड वॉज नॉट गोइंग इवन अप. सिर्फ इतना ही जा रहा था. इट वॉज दैट टाइट. सो इट वॉज ऑल्सो लुकिंग टाइट, इट वॉज लुकिंग अनकम्फर्टेबल. सो एट द एंड मैंने कुछ जुगाड़ करके हमने जो दुपट्टा था वो इधर से ऐसे डाला. यूजुअली केप दुपट्टे यहाँ से डलते हैं एंड इट गोज डाउन. ये इसको हमने इधर करके इधर भी पिन मारी थी एक, बिकॉज वी वांटेड टू हाइड दैट अनकम्फर्टेबल पोर्शन ऑफ माई हैंड. ऐसे कुछ जुगाड़ करके हमने वो आउटफिट बचाया था. द थिंग दैट आई लर्नड इज कि कुछ ना कुछ गलत जाने ही वाला है. एज अ गर्ल यू वांट योर आउटफिट एंड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, बट कुछ ना कुछ गलत जाएगा. अब उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो या हाउ यू आर डीलिंग विद इट इज इम्पोर्टेंट. Now moving to the main element, the wedding lehenga, and I also got it from Bombay Wear. And Bombay Wear में they have like crazy collection for lehengas. मतलब एक से एक दिखा रहे थे मुझे and I was just getting confused. I started from pink because मेरे दिमाग में सिर्फ पिंक था and I just wanted to go out on pink. Then I started with magenta lehengas. मजेंटा मैंने देखा मेरे दिमाग में अच्छा लग रहा था, बट मैंने आई सॉ इट एंड मैंने जस्ट पुट इट ऑन माई सेल्फ. इट वॉज जस्ट गिविंग टू मच, लाइक टू मच, एंड मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था मजेंटा. सो मैंने तभी अपने दिमाग से स्क्रैप कर दिया कि भाई मजेंटा हॉट पिंक के लिए नहीं जा रहे हम. मैंने ट्राइड लाइक अ कियारा अडवाणी लहंगा. it was literally like the ombres and everything, the silver work, and it was also in the variant of golden work, and I really loved it. And मेरे दिमाग में तो वो फाइनल हो गया था. Then my mom saw this maroon लहंगा कहीं और पड़ा हुआ है. He was not even showing me maroon लहंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में maroon फिर भी ठीक है, पर red I was like ठीक है देखेंगे रेड करने की नहीं. नाउ वी शॉर्टलिस्टेड मरून लहंगा एंड द ओम्ब्रे पिंक लहंगा. नाउ आई ट्राइड द ओम्ब्रे पिंक एंड इट लुक्ड नाइस. वी ट्राइड मरून लहंगा एंड द मरून वाज लाइक बैंग ऑन. आई वाज स्टिल इन टू माइंड्स कि यार मुझे तो पिंक ही चाहिए था एंड द ओम्ब्रे इज लुकिंग सो प्रिटी एंड दिस एंड दैट. बट देन आई थॉट अबाउट इट एंड मुझे फिर लगा कि यार आई शुड नॉट फॉलो अ ट्रेंड कि मतलब कियारा अडवाणी ने पहना था तो इट वुड ऑल्सो लुक गुड ऑन मी. ट्राई टू थिंक कि भाई मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा, मेरे फेस पे मेरे स्किन टोन पे क्या अच्छा लगेगा, उस
तो उस हिसाब से लेट्स सेलेक्ट द लहंगा एंड देन वी फाइनलाइज द मरून लहंगा बिकॉज इट was a very pretty maroon lehenga, you can see. And we styled it also very minimal because it was so heavy. उसके डबल दुपट्टा था, डबल दुपट्टा नहीं किया हमने क्योंकि बहुत ही हैवी लुक आ रहा था, ट्रांसपेरेंट भी नहीं था, इट वाज लाइक अ वेलवेट दुपट्टा. देन चूड़ा ऑल्सो वी डिड लाइट, वी डिडंट डू, वी स्किप्ड द माथा पट्टी, सो वी केप्ट इट वेरी मिनिमलिस्टिक ताकि वो लहंगा डज द टॉकिंग. And it did, and I did. I was very happy with my wedding look. It was different and it was just the kind of styling I wanted. So starting with my haldi outfit, it costed me about 30k with no stitching cost because they waived that off for me. Then for Sangeet, it was 35k plus 5k for the stitching. Then for the wedding, it was 50k plus 5k stitching. Now moving on to the jewelry. Jewelry, I mean मुझे outfits में ना problem नहीं हुआ selection में जितना मुझे jewelry में हुआ है. And for jewelry, I first went to Bhuleshwar market. वहाँ पे भी यार it's so chaotic इधर उधर, but I ended up getting a few jewelries from there. So जो हल्दी में मैंने कलीरे पहने थे, that was a full set. उसके साथ ईयरिंग, माथा, मांग टीका वगैरह वगैरह था. I got that from Bhuleshwar in 800 rupees, but I ended up wearing only the Kalira. I got another set later on, I'll tell you about that. Then Bhuleshwar market से मैंने संगीत के ज्वेलरी लिए. So the necklace and the earring all came for 900 rupees, which was a steal. I think it was a really good steal. Bhuleshwar market में आपको इतने कम prices में मिल जाते हैं ज्वेलरी and गुड ऑल्सो, बट सब कुछ वेराइटी नहीं मिलेगा. जैसे कुछ चीज़ें मुझे मिली, कुछ नहीं मिली. देन संगीत के बैंगल्स भी मैंने वहीं से लिए थे. इट कॉस्टेड अबाउट 3000, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है बट अराउंड दैट. देन वी ऑल्सो गॉट द चूड़ा एंड द कलीरा. द कलीरा वॉज आई थिंक अराउंड 1500 एंड द चूड़ा अराउंड अगेन 1000-1500, तो टोटल 3k का कुछ था. एंड एक्चुअली मैंने भुलेश्वर मार्केट से मेरी वेडिंग ज्वेलरी भी ली थी. इट कॉस्ट अबाउट 2000 बट इट वॉज सो बैड. आई मीन व्हेन आई केम बैक होम आई रियलाइज्ड इट्स नॉट लुकिंग गुड. मेरे पास एक्चुअली मेरे आउटफिट्स भी नहीं थे व्हेन आई वाज डूइंग ज्वेलरी शॉपिंग एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड. कभी भी ज्वेलरी शॉपिंग के लिए एटलीस्ट अपना ब्लाउज तो लेके ही जाना, बिकॉज उसके बिना आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि गोल्ड कौन सा कलर का है, ये इसके साथ जाएगा कि नहीं, ये एकदम ही ऑफ लग रहा है. बहुत सारी चीज़ें होती है, नेक लाइन देखनी होती है ब्लाउज़ की. अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट राउंड मैंने कर लिया था ज्वेलरी शॉपिंग का. उसके बाद आई थॉट यार नहीं, आई वॉन्ट समथिंग एल्स. तो फिर वी वेंट टू दिस प्लेस. इट्स अगेन इन बॉम्बे वेयर वाले ही कॉम्प्लेक्स में, प्रभु प्लाजा में. इट्स कॉल्ड रिया आर्ट ज्वेलरी and they had beautiful designs, little expensive but beautiful collection you will get there. वहाँ से मैंने हल्दी का सेट लिया अपना. It costed about 5000, very expensive but बहुत ही अच्छा पीस था. Then for the wedding, everything, the necklace, the earrings, the maang tikka, and we also got the matha patti. I did not end up wearing matha patti. The rings, all of that totaled up to 10 to 12k. So that was all about my outfits. So I would like to summarize a few learnings that you can draw from my experience. So first is कि शॉपिंग के लिए बिग सिटीज़ में जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आप अपने लोकल सिटीज़ में भी खरीद सकते हो इफ़ यू नो द राइट शॉप्स एक्सेट्रा. देन फॉर ज्वेलरी डेफिनेटली कैरी योर ब्लाउजेस, बिकॉज मैंने 2 राउंड्स ऑफ शॉपिंग की बिकॉज आई मेड दिस मिस्टेक कि मैं फर्स्ट टाइम पे ब्लाउजेज नहीं लेके गई. अगर ब्लाउज रहता है आपके पास, द शॉपिंग बिकम्स मच ईजियर. ऑल्सो द शॉपकीपर हेल्प्स यू पिक द डिज़ाइंस अकॉर्डिंग टू योर ब्लाउज इफ़ यू शो देम. पिक्चर पे अलग कलर्स दिखते हैं, रियल में अलग कलर्स दिखते हैं. सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप ब्लाउजेज लेके जाओ. सेकेंड टाइम में मैं अपने ब्लाउजेज लेके गई थी एंड दैट्स वाई आई गॉट द परफेक्ट ज्वेलरीज. एंड ऑल्सो वन थिंग आई लर्न कि आप जो जितनी चीज़ें खरीदोगे वो सब नहीं पहनोगे. एट द वेडिंग डे ऑल्सो चूड़ा, मेरे चूड़ा वो मेरे हाथ में नहीं जा रहे थे बिकॉज उस टाइम मैंने चेक नहीं किया था कि साइज़ तो सबका सेम था, पर राइट हैंड जो आपका होता है ना थोड़ा सा मोटा होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल का, मेरा है, तो वो लेफ्ट में तो आ जा रहा है पर राइट में नहीं आ रहा है. तो व्हेन आई वाज ट्राइंग विद द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड
में मेरे फिर वो फिट नहीं आए. सो इतने मैंने कलीरा लिए थे, पर चूड़े लिए थे, बट आई एंडेड अप वेयरिंग लाइक दिस मच ओनली. जो मुझे फिट आए वही मैंने पहने. बट इट डिड नॉट स्पॉइल माई लुक बिकॉज मेरा लहंगा इतना हैवी था. बट इट कुड इम्पैक्ट इफ इफ यू आर गोइंग फॉर दैट सिग्नेचर लुक्स. सो कभी भी जो भी आप ले रहे हो प्रॉपरली चेक करके लेने का, सब ट्राई करना. ईयरिंग कभी बहुत हैवी ईयरिंग्स आती है कभी कभी ब्राइडल सेट में. सो ट्राई ऑल ऑफ दैट आउट एंड ओनली देन मेक द परचेज. ऑल्सो ब्राइडल सेट्स आते हैं जो सब कुछ होता है उसमें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो देखा कि वो इतने अच्छे नहीं होते. तो सब कुछ अलग अलग सेम डिज़ाइंस के लोगे तो शायद आप अच्छा परचेज कर सकते हो. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज. Until then, bye bye and take care.